friends. This is Dr. Meenakshi Singh Solanki, Assistant Professor from Biani Group of Colleges. Today I am going to give a brief discussion about, a brief detail about, a brief introduction about chemical kinetics. Now the question arises, what is the requirement of chemical kinetics when we are studying the thermodynamics? Now the answer is, in thermodynamics we study about whether reaction will occur or not. दैट इज़ इट इज़ फिजिबल और नॉट, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, अगर होती है तो एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, केमिकल की जो एनर्जी है, जो रिएक्शन की जो एनर्जी है उसके बारे में हम थर्मोडायनामिक्स स्टडी करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट रिएक्शन होगी कि नहीं होगी उसके साथ हम ये भी देखते हैं कि उसका यील्ड कितना होगा. इट मीन्स द क्वांटिटी, हम क्वांटिटी के बारे में भी बात करते हैं, बट हम उस बीच में कहीं भी रेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. तो ये जो फील्ड है, द सब्जेक्ट, द फिजिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट, केमिकल काइनेटिक्स say you about or give you detail about the rate of reaction. So now we will relate to the term chemical kinetics. Now the term chemical means chemical reaction, and kinetic word is derived from the Greek word means momentum, motion or the dynamics. So in this we will study about the rate of reaction, how reaction is taking place. It's fast, slow or in moderate rate. Now the definition is, it is a branch of physical chemistry which deals with rate of reaction, which are the factor which are affecting the rate of reaction, sort of relationship with the mechanism of the reaction, and last but not the least the rate law. And all these points will be study point wise point in the later on. So definition is, it is a branch of physical chemistry which basically deals with the rate of reaction and the factor which are affecting the rate of reaction, sort of relationship with the mechanism, and last but not the least rate law. All these points we will discuss in upcoming sessions. Now what is rate? Question arises, what is rate? It is nothing but just simply change in concentration of reactant or product with respect to time. जैसे जैसे टाइम बढ़ता है रिएक्शन आगे बढ़ती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है. उसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं माइनस प्लस डी एक्स अपॉन डी टी, वेयर डी स्टैंड्स फॉर स्मॉल चेंज एंड एक्स मे बी अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट साइन डिनोट्स? Positive sign denotes that it is an increase in concentration of product, whereas negative sign denotes that it is a decrease in concentration of reactant with respect to the time. Now the question arises, what is the unit of the rate? It's very simple, as here the term is concentration and here the term is time. So the unit of concentration is mole per liter and the unit of time is second. So it will be concluded into mole per liter per second. Now rate can be of three types. It may be fast, it may be slow or it may be of moderate. You know very well कि फास्ट रेट वो होती है जैसे कि एसिड बेस की रिएक्शन, जैसे ही हमने एसिड को बेस में मिलाया, इट डजेंट मैटर कि हम उसको पूरा एक कंटेनर को दूसरे कंटेनर में पोर करें. इट्स सिंपल कि जैसे ही एक ड्रॉप गया और रिएक्शन हो गई, वो न्यूट्रलाइज हो गया. सो इट्स वेरी फास्ट, इट डजेंट वेट कि हम पूरा ही वॉल्यूम एक को दूसरे में पोर करें. जैसे जैसे वो ड्रॉप जाता है वैसे वैसे ही रिएक्शन होती जाती है. तो इट्स वेरी फास्ट, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मिलियन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये हो जाता है. वेयर एज स्लो स्टेप इज़ वेरी स्लो रेट, वेरी स्लो इन सेंस आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल. इट टेक मंथ्स और द ईयर, और वी कैन से इट टेक वेरी लॉन्ग टाइम to complete a reaction. So simple answer is rusting of iron. Now next, moderate. Moderate is normal reaction what you carry out in your labs. So it's a basic जो बहुत ही considerable time में होती है, जिसको हम measure कर सकते हैं, जो हम experimentally करते हैं, वो होती है moderate rate of reaction. Now this is a graphical representation which shows the progress of reaction, that is direction of reaction from reactant to the product, and this is concentration, change in concentration. We know जैसे जैसे टाइम बढ़ता है हमारा जो रिएक्टेंट है वो डिक्रीज होता जाता है इन कंसंट्रेशन, एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और एज रिएक्शन प्रोग्रेस जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ये एक पॉइंट है जहाँ पे दोनों पॉइंट मर्ज हो रहे हैं, दोनों पॉइंट जो है मर्ज हो रहे हैं. तो इस पॉइंट को आप क्या कहेंगे? इट्स अ मिसबिलीफ कि सब बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है. नो, इट्स नॉट इक्विलिब्रियम पॉइंट. ये वो पॉइंट है जहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के बराबर है. इट्स नॉट अ इक्विलिब्रियम पॉइंट. नाउ व्हाट इज रेट लॉ? Rate law is, according to rate law,
rate of reaction is directly proportional to the active concentration of reactant. It means जैसे जैसे reactant का concentration ज़्यादा होगा उतना ही rate of reaction भी ज़्यादा होगी. It is directly proportion. concentration ज़्यादा तो rate of reaction भी ज़्यादा. But यहाँ पे एक term मैंने add किया है active concentration. Now what does it mean? It's very simple. Active concentration means ऐसा नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल जो भी रिएक्टेंट हैं वो सारे ही पार्टिसिपेट करेंगे. कुछ ही ऐसे मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे और वो मॉलिक्यूल जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम बोलते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल. अब कंडीशन क्या है एक्टिव मॉलिक्यूल होने की? इट्स वेरी सिंपल. दे आर बेसिकली टू कंडीशन. मॉलिक्यूल के पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए. अब हम दोनों पॉइंट्स को एक एक करके देखते हैं. सफिशिएंट एनर्जी इन द मीन्स कि रिएक्टेंट के पास खुद की कुछ ना कुछ एनर्जी है जिसको हम नॉर्मल एनर्जी बोलते हैं और पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है. तो दिस ग्राफ शोज, दिस पोर्शन शोज द नॉर्मल एनर्जी. ओके, नाउ ये जो एनर्जी बैरियर यहाँ से लेके रिएक्टेंट से लेके जो एनर्जी बैरियर तक का पार्ट है ये है एक्स्ट्रा एनर्जी जो हमें रिएक्शन को प्रोवाइड की जाती है, हम उसको देते हैं. इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. सो द सम ऑफ नॉर्मल एनर्जी एंड द एक्टिवेशन एनर्जी इज सेड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी. इसका मतलब ये है कि अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसके पास कम से कम कितनी एनर्जी होनी चाहिए? इन दोनों की सम जितनी. इन सेंस कि थ्रेशोल्ड जितनी एनर्जी मिनिमम होगी तभी रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. इट मीन्स थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट. और हम ये भी कह सकते हैं कि मिनिमम एनर्जी थ्रेशोल्ड होना चाहिए बट उससे ज़्यादा भी हो तो इट्स मच बेटर. नाउ द सेकेंड टर्म इज प्रॉपर ओरिएंटेशन. प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब जब भी मॉलिक्यूल दो कोलाइड कर रहे हैं तो उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए. अगर सपोज स्पेरिकल हैं तो वो प्रॉपर जगह से अगर कोलाइड करेंगे तभी जाके उनका प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं पड़ेगा. रैंडम कुछ भी अगर आके कुछ टकराता है, कोलाइड होता है तो उसका प्रोडक्ट नहीं फॉर्मेशन. और प्रॉपर ओरिएंटेशन होना इज कंपल्शन. नाउ अगर हम रिएक्शन की बात करें, सपोज एक्स मोल ऑफ ए ने रिएक्ट किया और हमें दिया प्रोडक्ट पी, तो होता क्या है? अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज पर द डेफिनेशन. सो अगर मैं प्रोपोर्शन साइन हटाती हूँ तो मैं कांस्टेंट रखूंगी जिसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट और द वेलोसिटी कांस्टेंट. सो इन दिस इक्वेशन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जहाँ पे आर इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड पावर है हमारे पास एन. अब कहाँ पे ये चीज़ क्या चीज़ किसको डिनोट कर रही है वो हम देखते हैं. आर तो है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन, के इज रेट कांस्टेंट और इट आल्सो नोन एज वेलोसिटी कांस्टेंट. नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड लास्ट वन इज एन दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अब इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं? के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सिंपल, हम आर को यहीं रखें और कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड पावर को हम कर दें नीचे. अगर इसकी यूनिट फाइंड आउट करने की कोशिश करें हम तो लिख सकते हैं रेट और नीचे है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पावर है एन. तो रेट की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर पर सेकंड, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस टॉपिक में. और कंसंट्रेशन क्या होता है? वी नो मोल पर लीटर. और क्योंकि पावर एन है तो मैंने यहाँ पे एन पुट कर दिया एज अ पावर. नाउ अगर मैं इसको जब सॉल्व करती हूँ तो मुझे इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन मिलती है दैट इज मोल n-1 L लीटर n-1 N पर सेकेंड, राइट. अब इस इक्वेशन, ये शॉर्ट ट्रिक इक्वेशन, इसमें आप जो n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कोई भी चाहे वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, चाहे वो सेकेंड हो, चाहे वो थर्ड, और थर्ड बहुत रेयर होता है. क्यों? वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, राइट. नाउ अगर हम यहाँ पे n की वैल्यूज पुट करते हैं, n कैन बी जीरो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, आप उसकी वैल्यू आप पुट करके ईजिली ही किसी भी ऑर्डर की यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं. बेसिकली यहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे तो मैंने x लिखा है और यहाँ पे मैंने n लिखा है. ऐसा क्यों? सी, x n के बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता. फर्स्ट केस को अगर हम कंसीडर करें कि जब x और n दोनों बराबर कब होगा, इन सेंस मॉलिक्युलैरिटी एंड ऑर्डर बराबर कब होगा. इट्स सिंपल, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है इट मीन्स सिंगल स्टेप रिएक्शन, दो मॉलिक्यूल रिएक्ट किए और प्रोडक्ट दिया तो 1 + 1 2 मिल रहा है, तो हमारे पास ऑर्डर भी 2 होगा और मॉलिक्युलैरिटी एज पर द इक्वेशन भी 2 होगी. अगर मैंने कॉम्प्लेक्स बोला तो उस केस में क्या हो जाएगा? n इज नॉट इक्वल्स टू x. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जो मोर देन 1 स्टेप में
कंप्लीट होती है। अब जब कोई भी इक्वेशन कोई भी रिएक्शन को मोर देन 1 स्टेप में हो रही है तो इट्स वेरी सिंपल, उसमें से वो स्टेप हम कंसिडर करेंगे जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, और ये जो स्लोएस्ट स्टेप है इसको हम बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसको हम बोल सकते हैं RDS इन शॉर्ट। अब जो ऑर्डर है ऑफ द रिएक्शन दैट इज N, इट विल डिपेंड ऑन द RDS। इस नंबर्स ऑफ स्टेप में जो स्लोएस्ट स्टेप है उसमें जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका जो सम है वो हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हो सकता है कि स्टार्टिंग में मैंने कंसीडर किया कि भाई 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, पर जब प्रोग्रेस हुई, रिएक्शन की मैकेनिज्म हुई, तो हमने देखा कि स्लोएस्ट स्टेप वो था जिसमें एक्चुअली 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसमें इंटरमीडिएट्स भी आ जाते हैं, सारे इंटरमीडिएट्स होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल दिख रहा है 2 बट है कितने, 3। तो उस केस में x है 2 और n कितना है 3। It means n is not equals to x. Okay friend, thank you for watching the video. Don't forget to like, share and comment on the video, and please subscribe our channel Guru KPO. Thank you.